Assalamu alaikum students. How are you? Fine. First of all, mark your attendance on the chat box with your name and class. Okay. Your book is Write Bite. Write Bite. Open your books. Chapter number 1. The data processing cycle. The data processing cycle. Data processing cycle में first of all we learn what are the stages of the data processing cycle, different forms of processed data, the computer processing system, and what are the advantages of computerized system. ठीक है? In this unit we will learn what are the stages of data processing cycle, different forms of processed data, what is computer and what are computer processing systems, what are the advantages of computerized system, कि computerized systems के कौन से advantages हैं कि हम उसको क्यों like करते हैं computerized system को. In this unit we learn that the computer process data into the informations. Computer हमेशा process करता है three things को. One is input, second is process and third one is output. Three things को process करता है, workout करता है, input, processing and output. Input, anything that is given to the computer is called input. Processing, work done by the computer is called processing. And the third is output. Anything that computer gives us is called output, or another name हम इसको कहते हैं information. So we learn the three steps of data processing. First is input, second is processing, and the third one is output. We use input devices like keyboards, scanners to enter data into the computer. हम input devices use करते हैं computer में data को enter करने के लिए, keyboards, scanners to enter data into the computer. Output devices like printers, monitors to view information, और printers और monitors के जरिए हम लोग information को देखते हैं screen पर. With the central processing converts data into the information. CPU के जरिए हम लोग process करते हैं data को and information को. And CPU is the brain of the computer. ठीक है? It's a main important component of the computer system. The information can be stored into the two storage devices. One is primary, second one is secondary. Computer can store two storage devices. One is primary and the second one is secondary. Primary में आपका क्या device आती है? आपकी आती है RAM. RAM stand for random access memory. And secondary storage में आता है आपका hard disk and CDs. ठीक है? हार्ड डिस्क क्या है? आपकी स्टोरेज है, कैपेसिटी है जिसके अंदर आप डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं. एंड सीडी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, जिसके अंदर आप डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. सपोज आपके स्कूल का इवेंट है या कोई आपका एनुअल फंक्शन है, उसका रिकॉर्ड है, आप उसको सीडी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं. In this chapter we will learn more about these steps that the data processing cycle. One is input, second is processing, third is output, and then जब हम इन तीनों चीज़ों को स्टोर कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, फिर हम उसको किसी भी चीज़ में स्टोरेज में सेव करेंगे, या प्राइमरी में या फिर क्या कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. First of all we discuss about the linear data processing. One is input, second is processing, and the third is output. One is input, second is processing, and the third is output. The input, processing, output and storage functions all connected to each other. यानी ये तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं. These steps takes place in the sequence. ये सारे steps क्या होते हैं? एक sequence में डन होते हैं. The data processing cycle describe the sequence of steps for converting in the usable information. यानी कि जब हम input देते हैं, process करता है और हमें क्या मिलता है? Results मिलता है. In book 1 we describe their linear sequence in begin with the input stage and at the output stage. यानी जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी instructions को डन करते हैं, सबसे पहले हम input देते हैं and then processing and then last is output. We will now study these steps, the part of the cycle. यानी जो हमारे पास
प्रोसेसिंग का, आउटपुट का और स्टोरेज का, हम इस साइकिल को किस तरह वर्क करते हैं, क्या नीड्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके जरिए हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। दिस मींस दैट द एंड पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एक्टिविटीज बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। यानी अगर आप स्टार्ट से ही सीक्वेंस में चलते हैं तो आपका एंड पे रिजल्ट्स भी आपको क्या होते हैं, वैलिड मिलते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज इनपुट स्टेज। फर्स्ट स्टेज हमारी कौन सी है, इनपुट स्टेज। डाटा एक्सिस्ट ऑल अराउंड द अस, यानी हम डाटा हमारे पूरे अराउंड, पूरे वर्ल्ड में, हमारे सर्कल, फ्रेंड्स में या हमारे क्लासरूम में हमारा डाटा एग्जिस्ट करता है। लाइक एक स्कूल का डाटा है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जैसे उसमें आता है नेम, क्लास, सेक्शन, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। वी हियर साउंड आवर ईयर्स एंड सी ऑब्जेक्ट्स विद आवर आईज ऑल द टाइम, यानी हम लोग देखते हैं, अपने कानों से सुनते भी हैं और चीजों को क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखते भी हैं, ठीक है। द इनपुट स्टेज इज अ स्टेज, एक ऐसे स्टेज है व्हेन डाटा इज फेड इनटू द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू बी कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। एक ऐसा प्रोसेसिंग साइकिल है जिसके जरिए हम इनपुट देते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और हमारे सामने रिजल्ट्स प्रोवाइड। वी नो अबाउट द वेरियस डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड अस सच एज इनपुट। अब हमारे पास डिफरेंट थिंग्स हैं जिनके जरिए हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। वन इज डाटा कलेक्शन, वन इज डाटा कलेक्शन। सपोज अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ होम बजट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले सोचेंगे आपको क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। सपोज अगर आप कोई भी विजिट ट्रिप प्लान करते हैं तो उसके लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस ट्रिप के अकॉर्डिंग आप उन सारी चीजों को क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। अपने ड्रेसेस, अपने शूज, अपने ग्लासेस, डिफरेंट थिंग्स को आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। सो फर्स्ट थिंग हमारी क्या है, डाटा कलेक्शन। अगर आपने उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, ठीक है, इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर द इनपुट। आप उन सारी चीजों को, डाटा को कलेक्ट करोगे फॉर प्रिपेयरिंग द इनपुट। In the above example, it would means according to the temperature daily for the 5 days. जैसे अगर डेली टेम्परेचर है उसको हम लोगों ने मेंटेन करना है। द पेपर और डॉक्यूमेंट ऑन विच डाटा इज रिकॉर्डेड बट इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट को। उसके बाद फर्स्ट हमने किया इसमें डाटा कलेक्शन, सेकंड है डाटा कैप्चर। डाटा कैप्चर इट इज अ स्टेज ऑफ एंट्रिंग ऑल कलेक्टेड डाटा इनटू द प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और किसको प्रोवाइड करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग को, ठीक है, सच एज अ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद दिस इज आल्सो नोन एज इनकोडिंग स्टेज, यानी जब हम इनपुट के जरिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए लेते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड अ इनकोडिंग स्टेज। दिस स्टेज इज कॉल्ड अ इनकोडिंग स्टेज। उसके बाद हमारे पास है what is mean by encoding. Encoding means converting data from that is easier to input at data processing system. It data can be encoded as day, month, year. डाटा को जब भी हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको डेट के साथ मिलता है, मंथ के साथ मिलता है एंड ईयर के साथ मिलता है। सपोज आपके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके जो भी आप इंटरनेट पे सर्च आउट करते हो आपको डे के साथ मिलता है, डेट के साथ मिलता है और ईयर के साथ मिलता है। सपोज देखिए आज की हमारी डेट क्या है, जुलाई 7, 2020, ठीक है, तो हमारे पास डे क्या है और मंथ क्या है और ईयर क्या है। कि इस डे पे, इस ईयर में हम लोगों ने कौन सा लेक्चर अटेंड किया है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। दिस मींस दैट इनकोडिंग, दिस इज कॉल्ड इनकोडिंग। उसके बाद हमारे पास है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन इज द स्टेज ऑफ सेंडिंग डाटा टू द प्रोसेसर एंड कैरिंग इट अक्रॉस वेरियस कंपोनेंट्स। इसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व कैरिंग डाटा फ्रॉम द प्रोसेसर टू द आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। हम जब डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, हमने उसमें से क्या एक्टिविटीज हैं दैट अलाउ डाटा टू सेंड फ्रॉम डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू अनदर। एक जगह से हम लोगों ने वन प्लेस टू अनदर अगर चीजों को सेंड करना है या कम्युनिकेट करना है, जैसे हम लोग जूम ऐप पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन राइट अ कमेंट अबाउट द सब्जेक्ट रेलेवेंट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेज है द प्रोसेसिंग स्टेज। द प्रोसेसिंग स्टेज, ठीक है। प्रोसेसिंग स्टेज क्या होती है हमारी, इज द स्टेज वेयर रॉ डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो चीज भी हम लोगों ने कंप्यूटर को दे दी है उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और हमें उसके बाद क्या प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा।
Modern data processing systems such as computer follow instructions called programs to process data. जब भी हम कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं, हमें किसी भी टास्क को डन करना होता है, तो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज करते हैं, लाइक डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. इफ यू वांट टू राइट एन एप्लीकेशन, स्टोरी, एसे या क्रिएटिंग अ नोट्स, यू कैन यूज अ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम. इफ यू वांट टू क्रिएट अ सैलरी शीट या कैलकुलेशंस करते हैं, so you can choose a spreadsheet program. If you want to create a presentation about any topic, so you can use the software PowerPoint software. There are many software application software help to solve any kind of your problem. ठीक है. उसके बाद हमारी स्टेज है आउटपुट स्टेज. कौन सी स्टेज हमारी? आउटपुट स्टेज. आउटपुट स्टेज इज वेयर इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा, यानी जब हम इनपुट दे रहे होते हैं फिर वो उसको प्रोसेस कर रहा होता है. लास्ट स्टेज हमारी कौन सी है? आउटपुट स्टेज. कौन सी स्टेज है? आउटपुट स्टेज. ठीक है. आउटपुट इज प्रेजेंटेड थ्रू सेवरल आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर. आउटपुट हम इन चीजों के जरिए देख सकते हैं. प्रिंटर इन द फॉर्म ऑफ पेपर. पेपर के जरिए जो भी आपको पेपर के ऊपर प्रिंट की हुई चीज मिलती है, जैसे आपको समर वेकेशन में आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, आप उनको प्रिंट करते हैं, तो जो भी आपको इनपुट क्या कहते हैं मिल रही है इंफॉर्मेशन, आप उसको प्रिंटर के जरिए क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं. अगर आप उसको प्रिंट नहीं करते, जस्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, वो आपके कौन सा है? मॉनिटर. और अगर कोई म्यूजिक है या कोई राइम है या कुछ भी है, एनी साउंड, तो आप उसको स्पीकर के जरिए सुन सकते हैं. आफ्टर यूजर हैव व्यू आउटपुट, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट डाटा मींस एंड मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. यानी जब आप प्रिंटर के जरिए, मॉनिटर के जरिए, स्पीकर के जरिए इन सारी चीजों को अपने साथ इंप्लीमेंट करते हैं, जब आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी? क्लियर होगी. दिस इज कॉल्ड डीकोडिंग. जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डीकोडिंग. लास्ट हमने पढ़ा था इनकोडिंग, जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, अब जब प्रोसेस हो रही है और रिजल्ट मिल रहे हैं, वो क्या होता है आपके पास? डीकोडिंग. Decoding occurs when the information code represent made available to the user when we enter the initial SA and the computer display Shahid Ali on the monitor is called decoding. जैसे आप लोग हमारे पास Zoom ऐप के जरिए ऑनलाइन हैं with your name, ठीक है. हमारे पास क्या हो रही है? आपकी आउटपुट शो हो रही है कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी थी अबाउट Zoom ऐप, तो आप उसको किस तरह प्रोसेस करें और हमें आप किस तरह हमारे साथ कनेक्ट हैं. दिस इज कॉल्ड आउटपुट. ओके, ठीक है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है द स्टोरेज स्पेस. मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज मेमोरीज. वन इज प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है आपका? रैम. सेकेंडरी में आपका आता है हार्ड डिस्क एंड सीडीज. ठीक है. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास टू डिवाइसेस आती हैं. वन इज हार्ड डिस्क एंड सेकेंड वन इज सीडी. सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क. सीडी स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क, जिसके अंदर आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को, अपने फैमिली इवेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. कुछ भी आप वीडियो बना के आप उसको सीडी के अंदर क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. ये पूरा आपका जो सर्कल है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. दिस इज कॉल्ड अ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में फर्स्ट डाटा मीन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट मीन इंफॉर्मेशन. उसके बाद जब आप स्टोर कर रहे हैं चीजों को, और उसके बाद जब आपने सारा डाटा कलेक्शन के लिए पूरा जो आपका सर्कल है, डाटा कलेक्शन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये पूरा आपका वर्क किसके ऊपर करता है? डाटा प्रोसेसिंग साइकिल पे. किसके ऊपर वर्कआउट करता है? डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाटा कैन बी प्रोसेस इन योर यूनिट. हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं. डाटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं टू फॉर्म्स में. वन इज सॉर्टेड एंड सेकंड वन इज ग्रुप. सॉर्टेड का मीनिंग क्या होता है कि आप चीजों को अरेंज कर रहे हो असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी. ठीक है. सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है? आप चीजों को अरेंज कर रहे हो. डिसेंडिंग और सॉर्टिंग मीन ऑर्गेनाइजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया. दिस क्राइटेरिया में डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी आप उसको अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, आपके पास एक रैंडम लिस्ट है. जैसे आपके सामने बुक पे गिवन है, आपके सामने एग्जांपल
देखिए एक रेंडम लिस्ट है आपके पास और दूसरी आपके पास कौन सी लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, एक रेंडम लिस्ट को आपने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर के लेटर्स के जरिए, कि आपके अल्फाबेट में कौन से लेटर सबसे पहले आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है लेटर्स में कौन सा आता है, बी आता है, फिर ई, फिर एच एंड देन एम। ठीक है, इन नेम्स के अकॉर्डिंग बिलाल, इरम, हसन, मॉइस। ठीक है, आपने इन नेम्स को एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। दिस इज मीन्स दैट सॉर्टेड डाटा, दिस इज कॉल्ड सॉर्टेड डाटा। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है ग्रुप डाटा। आप ग्रुपिंग कर देते हैं डाटा को आइटम इन द सेपरेट ग्रुप सो दैट ऑल द मेंबर्स ग्रुप्स हैव समथिंग इन द कॉमन, that might able to group all the students of class 5 in the group of the students class 6 in from the combined list of all the students। यानी ये क्लास 5 के भी स्टूडेंट्स हैं और 6 के भी हैं, आपने उनकी ग्रुपिंग कर दी है कि यहाँ से लेकर जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपको डिफरेंट क्लासेस में शफल कर दिया जाता है, आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। सम स्टूडेंट्स क्लास 5 के स्टूडेंट 6 मोड में बैठेंगे, 5 के स्टूडेंट्स 4 मोड में बैठेंगे, यानी हम ग्रुपिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो हमारे पास कुछ रोल नंबर्स होते हैं, ठीक है, अनग्रुप डाटा के, और हम लोग उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस। न्यूमेरिक डाटा कैन परफॉर्म वाइडली वैरायटी ऑफ कैलकुलेशंस। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस by using the computer। कंप्यूटर के जरिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं उनको डन करते हैं। यूजर्स कैन आल्सो क्रिएट ग्राफ्स, पाई चार्ट, डाटा डिस्प्ले डाटा, यानी आप अपने डाटा को किसी भी फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं, ग्राफ में, पाई में, या आप मैथ्स में पढ़ते भी रहे हैं तो आप उसके जरिए डन कर सकते हैं। कंप्यूटर इज हाईली एफिशिएंट at performing calculation, the capabilities exceed to the human beings, यानी इंसानों से भी ज़्यादा विदिन 1 सेकंड में आपको रिजल्ट क्या होता है प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमेशा प्रोसेस करते हैं डाटा को विदिन 3 स्टेप्स। 1 इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज आउटपुट, एंड देन हम उसको चीज़ों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास है which one is the best system, one is the manual, second is the computerized system। मैनुअल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जैसे आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने रिकॉर्ड्स को, कोई भी स्टोर्स वाले जो होते थे वो अपने रिकॉर्ड्स को किस तरह मेंटेन करते थे, विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। अब तो गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, करेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप हर कोई भी मार्ट में जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं तो हर जगह पे क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। लाइक आप किसी मार्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं डोर ओपन हो जाता है, ये सारा क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम है कि सेंसर के जरिए जस्ट हम हैंड आगे करते हैं और टैप से वाटर आने लगता है। ये सारा क्या है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसकी बिहार पे आपके टाइम की क्या होती है, बचत भी होती है और आपने वर्क को, अपने टास्क को इजीली एंड क्विकली एफिशिएंटली डन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अब आपने चूज करना है which one is the best solution, manual system or computerized system। Okay, I will discuss about the computerized system। What are the advantages of the computerized system? computerized system होता क्या है, ठीक है, और ये किस तरह वर्क होता है। जैसे आपके सामने एक मैनुअल सिस्टम में सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है कि शॉप पे पर्सन बैठा हुआ है और वो अपने रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए पीपल यूज असेस डाटा, वर्क एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, वर्क करते हैं। समटाइम कंप्यूटर कैन बी कनेक्ट विद द अदर मशीन्स सच अ वे द पीपल डू नॉट इवन नीड टू मेक द डिसीजंस। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा, कंप्यूटर हमेशा क्या करता है, प्रोसेस करता है, डिसीजंस लेता है, इवन कैरी देम आउट। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। और मैनुअल में क्या है, शॉपकीपर में रिकॉर्ड सेल ओपन रजिस्टर को ओपन करते हैं और फौरन डाटा को क्या करता है, उसके अंदर राइट डाउन करना स्टार्ट कर देता है। समटाइम्स उसके ऊपर वाटर गिर जाता है उस रजिस्टर के ऊपर, तो रिकॉर्ड क्या होता है आपका, परमानेंटली सेव नहीं होता। उसके बाद आपने देखा कि आपने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। 1 इज स्पीड, कि कितनी अच्छी स्पीड है इसकी। सेकंड इज एक्यूरेसी, कितना अच्छा वर्क करता है। एफिशिएंसी, कितना क्विकली हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। वैरायटी, कितनी टाइप्स है इसकी कि हम अपने टास्क को विदिन 1 सेकंड में डन कर सकें। इजी ऑफ यूज, कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टफुल है कि हम उसको एक दफ़ा समझें और बार बार हम उसको यूज़ कर सकें। कैपेसिटी, और इसके अंदर कितनी एबिलिटी है, वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट हमारी काइंड है स्पीड। फर्स्ट हमारी काइंड क्या है,
फास्ट प्रोसेसिंग इज द की ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। जब तक एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की स्पीड अच्छी होगी तो हम ट्रस्ट करते हैं कि इसकी स्पीड अच्छी है और हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दे कैन प्रोसेस डाटा इन द सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे हम आपको जूम ऐप के जरिए लेक्चर्स देते हैं, आपको लिंक शेयर करते हैं उसका, तो आपको विद इन 1 सेकेंड के अंदर आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि एक सर्कल बन जाता है हमारे फ्रेंड्स का, हमारे टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, कि हम लोग क्लास ले रहे हैं और आप सब लोग उसको लाइव क्या कर रहे हैं, सुन सकें विद द हेल्प ऑफ स्पीड। If the processing speed is sufficiently high, अगर processing speed sufficiently high है, then the same function can be carried out within a microsecond. Manual processing cannot even begin to compete with the computer when it comes to speed. यानी मैनुअल सिस्टम में हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी डर नहीं कर सकते एज लाइक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारे पास काइंड क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स हम किस तरह उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में काम करें। इट्स अ फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। एक्यूरेसी किसका फीचर है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का। डाटा प्रेसिजन इज एक्सट्रीमली हाई। कंप्यूटर्स कैन कैलकुलेट फिगर इन द स्मॉलेस्ट डिग्री, इनेबलिंग यूजर टू डिपेंड फॉर द सेंसिटिव कैलकुलेशंस। यानी कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस को विद इन 1 सेकेंड में उसको सॉर्ट आउट करता है और एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारी काइंड है एफिशिएंसी। हाउ कैन कंप्यूटराइज्ड वर्क विद द एडवांटेज ऑफ एफिशिएंसी? इट इज अ कॉमन फीचर ऑफ द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर है कंप्यूटर। दिस रिजल्ट्स एंड एरर फ्री प्रोसेसिंग हाई स्पीड, यानी आप इसके अंदर विदाउट एनी एरर वर्कआउट कर रहे हैं कि आप जो काम करें इतना एफिशिएंट है कि कोई भी एरर्स आपको शो नहीं कर रहा। ठीक है, द काइंड ऑफ प्रोसेसेस सी द मोस्ट प्रोसेस एंड द विजिबल इन द मैनी एप्लीकेशंस। ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें किस तरह वर्क कर रहे हैं, एडवांटेज एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास काइंड क्या है, वैरायटी, कि हमारे पास कितनी टाइप्स की वैरायटीज हैं, हम किस तरह डन कर सकते हैं अपने टास्क को। कंप्यूटर हैव एडवांस कैपेबिलिटीज। कंप्यूटर के पास एडवांस कैपेबिलिटीज हैं दैट इनेबल्स टू प्रोसेस डाटा इन द क्रिएटिव वेज। ठीक है, कंप्यूटर कैन बी प्रोसेस्ड एंड डिस्प्ले इन वेरियस so that it is simpler for the user to understand। यानी कि आपके पास वैरायटीज होती हैं कि आप उस टास्क को किस तरह डन कर सकें। सपोज मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, उसको प्ले स्टोर की ऑप्शंस होती है, देखते हैं कितने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके अकॉर्डिंग टू नीड। इफ़ यू वांट टू राइट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स मीन दैट यू कैन इजीली राइट स्टोरीज, एप्लीकेशन, ऐसे क्रिएटिंग नोट्स ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सैलरी शीट, होम बजट, क्या कहते हैं, पिकनिक प्लान्स, तो आप स्प्रेडशीट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना बजट यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक की अबाउट प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ द पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। सो इट्स मीन दैट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में यू हैव अ लॉट ऑफ वैराइटीज, सो यू कैन चूज एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। उसके बाद है इजी ऑफ यूज़। ठीक है, इजी ऑफ यूज़ क्या है? इजी ऑफ यूज़ मीन अगर आपने एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर को, एक सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप किस तरह उसको यूज़ करें। इजी ऑफ यूज़ इज अनदर एडवांस बिकॉज कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को हम वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमेशा उसी टास्क को डन करता है जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। वंस द यूजर अंडरस्टैंड दैट दे कैन यूज टू परफॉर्म द काइंड ऑफ वर्क, एनी काइंड ऑफ वर्क। यानी जब भी हम कंप्यूटर को एक टास्क देते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या कर सकता है, डन कर सकता है। इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, वैरायटी एंड इजी ऑफ यूज। नेक्स्ट इज लास्ट इज कैपेसिटी, कि इसके अंदर कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि हम इस टास्क को डन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कैन परफॉर्म मोर कैलकुलेशन ऑपरेशंस एंड ह्यूमन। This makes computerized system produce better and fast results of the manual system। यानी मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, a computer can work for a longer time than humans without feeling tired, become inefficient। बहुत इंसान क्या होते हैं, वर्कआउट करके थक जाते हैं, तो कंप्यूटर पे आप दिन रात जैसे भी टास्क को डन करते हैं वो बिल्कुल टायर्ड नहीं होता। दे नेवर बोर्ड, दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, दे कैन डू एनी टास्क विद द कंप्यूटर।
Computerized systems also have greater memory. उसके पास बहुत अच्छी memory होती है and storage capacities than the manual system. But one thing, at the same time, computerized systems are not effective in all situations. I like computerized system, but computerized system is not effective in all situations. हर situations में best नहीं होता. हमारे हर personal everything task को done नहीं कर सकता. A computer cannot think for itself. Computer खुद से नहीं सोच सकता. जो अल्लाह ताला ने इंसान को सिलाई देनी है, capabilities दी हैं, उसको relevant computerized system बिल्कुल zero है. अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की हर चीज़ की ability दी है. तो अल्लाह ताला की जो ये है वो बेस्ट है. इट कैन नॉट मेक डिसीजंस, यानी कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजंस नहीं ले सकता विच इट हैज़ नॉट बीन प्रोग्राम. अगर खुद से हम उसको प्रोग्राम नहीं करेंगे तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेगा और ना हमें कोई टास्क बताएगा. ठीक है. उसके बाद है कंप्यूटर्स कैन नॉट लर्न वॉचिंग अदर पीपल्स वर्क. कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, आपके साथ बैठा पर्सन क्या काम कर रहा है. ठीक है. लेकिन ह्यूमन का अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, उनको आइज दी हैं कि वो इससे देख सकते हैं कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इट कैन आल्सो अडॉप्ट द न्यू सिचुएशंस ऑन इट्स ऑन. न्यू सिचुएशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं. अबव ऑल कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स. कंप्यूटर के पास बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है विच ह्यूमन बीइंग्स हैव. इंसान फील कर सकते हैं कि आपने उस किस टाइम पे किस टास्क को डन किया है. सो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. What are the stages of data processing cycle? Input, processing and output. ठीक है. स्टेज प्रोसेसिंग साइकिल में हमने पढ़ा था डाटा कलेक्शन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया था विच वन इज द बेस्ट सोल्यूशन, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. मैनुअल सिस्टम में क्या होता है, शॉपकीपर जिस तरह की चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और रिकॉर्ड मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर. और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में ऑल वर्क डन विद द कंप्यूटर. उसमें चेक किया जाता है कि विच व्हाट आर द गुड एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स. स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, वैरायटी, easy of use and the capacity. These all things can help to the computerized system. So this one is the best system of the world that we can use in all situation. Okay, your homework is learn plus write work page plus question answer D और E part complete of chapter number 1. ठीक है. आपने इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे वो आपने मस्त अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं और उसको क्या करना है, आपने लर्न भी करना है. ठीक है. इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट द रेलेवेंट टॉपिक ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल? So you can ask. Have a good day. Stay blessed.